So the third condition was that there should be, we should heat the substance up to its ignition temperature. To that we have not proved, है ना? So now there is one activity in your book. You can see that activity, that is activity number 6.4. 6.4, we have to see this also. Here we will prove that ignition, the substance should reach to its ignition temperature also for the process of combustion. How we are going to prove this? We will take two paper cups like this, and we will take a stand also. Here in this diagram, the stand is not here. We will take a stand, we will take a tripod stand, and on that tripod stand we will keep both the paper cups. दो पेपर कप हमें लेने हैं, ठीक है? एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा आपने. ट्राइपॉड स्टैंड को रखकर उसके ऊपर दोनों पेपर कप्स को रख देना है और उसके नीचे एक एक कैंडल वी विल कीप. ठीक है? नाउ वी विल लिट द कैंडल. कैंडल को जला देंगे. See, in one of the paper cups we have taken some amount of water. दोनों को हमने empty नहीं रखा है. One paper cup is empty and another paper cup is having some amount of water. Now candles are burning and paper cup are on the stand. So what we will observe, after some time we will observe that the paper cup which was empty will start burning. जो paper cup हमारा empty था, जो हमारा खाली था paper cup, वो जो है burn होना शुरू हो जाएगा. But the another paper cup will not burn. लेकिन जिस पेपर कप के अंदर there is some amount of water, जो हमने पानी लिया था जिसके अंदर, वो पेपर कप burn नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? See, a paper is a combustible substance we know, and the ignition temperature of paper is very low. पेपर को जो है बहुत कम ignition temperature की जरूरत होती है. थोड़ा सा भी ignition temperature जब हम उसमें देते हैं तो वो burn होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए पेपर का burn होना शुरू हो गया. बट जो हमारा सेकंड वाला था paper cup in which we have taken some amount of water, that is not burning. Why that is not burning? Because whatever amount of heat we are giving to paper cup, that all heat is transferring by the process of conduction to the water. जो हमारा पेपर कप है उसका जितना भी वाटर है वो सारा का सारा सॉरी जितना भी हीट है वो सारा का सारा किसको ट्रांसफर होता जा रहा है? वाटर को, जिसकी वजह से पेपर कप को अपना टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा. पेपर कप को तो कोई टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा, उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, तो उसको अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा और वो बर्न नहीं होगा. तो दो with the help of this activity, this is also proved now that the third condition which says that heat the substance up to its ignition temperature is also very important. If the substance will not reach to their ignition temperature, they will not burn. और अगर किसी चीज को अपने आप ही ignition temperature मिल जाए तो वो अपने आप भी बर्न होना शुरू हो जाती है. लाइक इन समर्स आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर हो जाती है, अपने आप ही जंगल्स में फॉरेस्ट में ना आग लग जाती है. ठीक है? तो क्यों लग जाती है वो आग? बिकॉज ड्राई लीव्स हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. जो हमारे ड्राई लीव्स होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और समर्स में जब टेम्परेचर रेज होता है तो उतने टेम्परेचर से ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं. क्लियर? और जब वो बर्न होते हैं तो उनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है? उससे हमारा जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनको भी अपना इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है, वो भी बर्न होना शुरू हो जाते हैं. तो इन दिस वे क्या होता है हमारा कि पूरे जंगल में आग लग जाती है, जिसके लिए उसको कंट्रोल करना भी बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट इट सेज नाउ, it means that the substances those are having very low ignition temperature, they can burn very easily, and that substances are called as inflammable substances like dry leaves and petrol and diesel and CNG. इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. ठीक है? तो इग्निशन टेम्परेचर के बेस पर अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन. नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ कंबशन. So there are basically three types of combustion. What are that three types? First one is spontaneous combustion. क्या है spontaneous combustion? Spontaneous combustion is a combustion when the substances start burning themselves only without giving even a spark. किसी चीज को हम एक स्पार्क तक नहीं दे रहे, चिंगारी भी नहीं दे रहे हैं, तब भी वो अपने आप ही रखे ही जलना शुरू हो जाता है. That is called as a spontaneous combustion. Like for example, phosphorus and sulfur. In chapter 4, you people have studied this, that we store phosphorus and sulfur in water, sodium and potassium in kerosene, because they react with oxygen with very vigorously, है ना? And now we have come to know with this chapter that reaction with oxygen means combustion.
ठीक है ना, पढ़ा है आप लोगों ने, चैप्टर 4 में मैंने समझाई थी ये चीज। तो फास्फोरस और सल्फर जो है वो ऐसे कंपोनेंट है, ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे एलिमेंट्स है जो अगर आपने कहीं रखे तो रखे रखे अपने आप ही जलने लगते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कंबशन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इन चीजों को स्टोर करने का बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अदरवाइज सपोज मान लो कहीं पर फॉस्फोरस रखा है, रखा रखा अपने आप ही जल गया, आसपास और चीजें जो है वो भी जलनी शुरू हो जाएंगी, तो डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का कंबशन होता है वेयर द ignition temperature is little high, like a spark is required, like LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल, इनको एक चिंगारी तो चाहिए, रखे रखे अपने आप नहीं जलेंगे। हमारे घर में सिलेंडर भरा रहता है एलपीजी, तो ये नहीं कि अपने आप ही जल जाएगा रखा रखा, एक स्पार्क की जरूरत है, हम ऑन करेंगे, एक स्पार्क देंगे हम लाइटर से तो जल जाएगा। पेट्रोल रखा रखा नहीं जलेगा अपने आप, हाँ, लेकिन अगर आप उसे स्पार्क देंगे तो वो जल जाएगा। तो रैपिड कंबशन ऐसा होता है कि जिसमें इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंसेस का लो होता है, बट इतना भी लो नहीं होता कि स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाए, थोड़ा सा एक स्पार्क की जरूरत होती है। थर्ड टाइप का कंबशन है एक्सप्लोजन। ये जो है तो रैपिड, यानी इसके लिए स्पार्क की जरूरत तो है, बट इसमें जो एनर्जी निकलती है ना, वो सारी की सारी एक साथ और एकदम निकल जाती है। लाइक अगर आप लोग पेट्रोल आपने भरा हुआ है सपोज अपने व्हीकल में, आप लोगों ने अपना कार स्टार्ट किया, पेट्रोल को एक स्पार्क मिल गया और उस वो जलना शुरू हुआ, कंबशन का प्रोसेस हुआ, एंड इट स्टार्ट बर्निंग, इट इज गिविंग नाउ एनर्जी टू यू, एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी योर व्हीकल इज मूविंग। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सारा का सारा पेट्रोल एकदम जल जाएगा और एकदम आपको बहुत सारी एनर्जी देगा। वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली बर्न होता रहेगा, स्लोली स्लोली एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा और एनर्जी आपको मिलती रहेगी। इसी तरीके से आपके घर में सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी के, उसमें सिलेंडर भरा, गैस भरा रहता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने ऑन करा तो बर्नर में सारी की सारी गैस एकदम से आ गई और सिलेंडर खत्म, नहीं, धीरे धीरे आती रहती है और धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। बट एक्सप्लोजन में क्या होता है, whenever we give a spark, all the content burn spontaneously, collectively, and give a large amount of energy along with heat and sound. बहुत सारी एनर्जी एकदम से एक साथ निकलती है, इतनी एनर्जी निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म जल सकता है, उस एनर्जी से बर्न करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे हमारे क्रैकर्स होते हैं, ये जो बॉम्ब्स होते हैं, उनमें जो कंबशन होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। आपको पता है क्रैकर से भी बर्न हो सकते हैं हम, और बॉम्ब से तो बहुत सारे लोग एक बार में बर्न होते ही हैं, पता है सबको। और उसमें जब ये एनर्जी निकलती है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी निकलती है, बिकॉज व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस साउंड एंड लाइट ऑल्सो। तो अगर बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकल रही है आफ्टर गिविंग अ स्पार्क along with sound and heat, that is called as explosion. अगर एक स्पार्क देने पर चीजें एनर्जी निकल रही है धीरे धीरे करके, दैट इज कॉल्ड एज रैपिड कंबशन। और अगर एक स्पार्क की भी जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप ही चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्लियर? अब आपको मैंने बताया था फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। देन व्हेनेवर वी वांट टू व्हेनेवर वी वांट टू एक्सटिंग्विश द फायर, वी यूज फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है फायर एक्सटिंग्विशर? यू पीपल मस्ट हैव सीन इन द स्कूल आल्सो, वी आर हैविंग द फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में हमारे पास एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर दो चैम्बर्स होते हैं, एक चैम्बर के अंदर सोडियम कार्बोनेट और दूसरे के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। नॉर्मली दोनों चैम्बर्स अलग अलग रहते हैं, बट जैसे ही आप प्रेस करेंगे, अपना नॉब प्रेस करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाला जो चैम्बर है वो खुल जाता है और उसमें से सल्फ्यूरिक एसिड निकलकर सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाती है। So these both will react together and they will form sodium bicarbonate, carbon dioxide and water vapors. सोडियम बाइकार्बोनेट तो चेंबर में यानी कंटेनर में ही रह जाती है, वाटर वेपर्स तो बाहर निकल आते हैं वाटर की फॉर्म में, और सॉरी गैस की फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है जब जैसे ही आप प्रेस करेंगे नॉब को। So carbon dioxide gas बाहर निकलेगी and it will form a circle around the fire and it will not allow the oxygen to cross that circle. So oxygen अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से fire will extinguish. So in this way these fire extinguishers work. इसका question बड़ा important है. When I will send you the answer key, I will send you the diagram also and working also of fire extinguisher. You people have to learn this question thoroughly and understand the process also. Clear? सो दिस इज ऑल अबाउट कंबशन। ये हमारा सिलेंडर है ना, देखो इसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, इसके अंदर फिर दो चैम्बर्स होते हैं, एक में सल्फ्यूरिक एसिड और एक में
सोडियम कार्बोनेट भरा रहता है, ठीक है। these are the chemicals। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी वो क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है, ठीक है। अब आते हैं हम रैपिड कंबशन, आपको बता दिया मैंने, स्पॉन्टेनियस बता दिया मैंने आपको, एंड आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द एक्सप्लोजन ऑल्सो, है ना। एक्सप्लोजन भी आपने कर लिया। अब देखो इस ये बुक देखो अपनी बुक में, इसके बाद हमारा क्या है, आफ्टर दिस वी आर हैविंग फ्लेम। फ्लेम वाला पोर्शन है जो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें नहीं करना है। नाउ आफ्टर दिस वी आर हैविंग पोल्यूशन, because whenever there is process of combustion, whenever anything burns, it produces smoke, and that smoke contains certain elements which causes pollution। जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं निकलता है। उस धुएं में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन से होते हैं वो केमिकल्स और वो कैसे पोल्यूशन कॉज करते हैं और क्या हम उनसे बच सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। देखो इतना पोर्शन जो आपको मैं बता रही हूँ, ये आपको ये सब आपको काट देना है। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस नाउ, वी हैव डिडक्टेड दिस। ये सारा ये सब आपको काट देना है, सब काट देना है। जब साथ साथ जब स्टार्ट होगा कहाँ से हमें पढ़ना है मैं आपको बता दूंगी। अच्छा अब पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। आपको मैंने क्या बोला था कि ऑल द substances have different temperature, at that temperature they start burning and that temperature is called as their ignition temperature। अब एक और चीज होती है सब सब्सटेंसेस में, स्पेशली फ्यूल्स में, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन सारे फ्यूल्स हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देते। लाइक अगर आप वुड को बर्न करेंगे तो कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, केरोसिन को बर्न करेंगे तो कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये जो हमें ये दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूल एफिशिएंसी और इट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। सपोज आपने 1 किलोग्राम कोल को बर्न करा, 1 किलोग्राम पेट्रोल को बर्न करा, 1 किलोग्राम वुड को भी बर्न करा। 1 किलोग्राम वुड को बर्न करने से मान लेते हैं आपको 3000 जूल की एनर्जी मिली, तो 3000 किलो जूल इज द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कोल वुड। आपको मान लो कोल को बर्न करने से 2000 जूल एनर्जी मिली, सो द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कोल विल बी 2000 किलो जूल। सपोज आपको पेट्रोल को बर्न करने से, देखो ये यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, कुछ सब्सटेंसेस की, कुछ फ्यूल्स की हमारी कैलोरीफिक एनर्जीज। सी हियर काउ डंग, जो हमारे काउ केक्स होते हैं ना, काउ डंग के केक बनते हैं, उससे हम 6000 से लेकर 8000 तक जूल एनर्जी मिलती है। तो इट मींस जो कैलोरीफिक वैल्यू है काउ डंग केक की, दैट इज 6 to 8000 किलो जूल। किलो जूल इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। वुड को अगर हम 1 किलोग्राम वुड को बर्न करेंगे तो हमें 17000 से लेकर 22000 जूल की एनर्जी मिलती है। इट मींस वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो गई, 22000। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन को बर्न करने से सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मिल रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की फ्यूल एफिशिएंसी यानी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो स्टूडेंट, जब हम फ्यूल्स को सेलेक्ट करते हैं कि हमें अपने व्हीकल में या घर में कौन सा फ्यूल यूज करना है, तो वी पे अटेंशन ऑन सर्टेन पॉइंट्स। हम कुछ चीजों पर ध्यान देते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें वुड यूज करना चाहिए एज अ फ्यूल, या कोल यूज करना चाहिए, या पेट्रोल यूज करना चाहिए, या डीजल यूज करना चाहिए, या सीएनजी यूज करना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग विच वी सी इन एनी फ्यूल इज द कैलोरीफिक वैल्यू, कि वो कितनी एनर्जी हमें दे रहा है। जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, यानी मोर द कैलोरीफिक वैल्यू मोर गुड विल बी द फ्यूल। जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू देगा कोई फ्यूल, हम बोलते हैं वो उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है। बट नॉट ओनली द कैलोरीफिक वैल्यू विल डिसाइड कि फ्यूल अच्छा है कि नहीं, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो। एक अच्छे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी छोटा सा स्पार्क देने पर वो जल जाए। ये नहीं कि आप 1 घंटे तक बैठे हुए हैं उसको बर्न करने के लिए, लाइक वुड है या काउ है, काउ डंग केक्स हैं और कोल है, बहुत देर में चलते हैं, ये इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू द अदर फ्यूल्स। तो इनको जलने में टाइम लगता है और हमें मैम इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। स्टॉप आपने ये क्वेश्चन भी दिया था एनसीईआरटी में कि वो वुड और एलपीजी का वो बताओ, हाँ, ये डिफरेंशिएट आप लोग के तफात। प्रॉब्लम्स बेटा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सुन लो, ठीक है। बीच में मत बोलो प्लीज, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में बात करना। तो क्या होता है इसमें कि हाइड्रोजन का अगर आप देखो तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। बट सेकंड थिंग हम क्या देखेंगे, इग्निशन टेम्परेचर की, इग्निशन टेम्परेचर भी लो होना चाहिए।
तो अब लेकिन अब देखो हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत लो होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई है, बट फिर भी हम इसे एज अ फ्यूल यूज नहीं करते। थर्ड फैक्टर होना चाहिए फ्यूल में, अच्छे फ्यूल में, कि वो पोल्यूशन कॉज नहीं करे, और हाइड्रोजन जीरो लेवल का पोल्यूशन कॉज करता है। ये सब थोड़ा बहुत पोल्यूशन कॉज करते हैं, काउडंग एक ज्यादा, वुड उससे थोड़ा कम, पेट्रोल तो कोल जो है उससे थोड़ा कम, पेट्रोल उससे कम, पेट्रोल से कम केरोसिन, केरोसिन से पेट्रोल से ज्यादा केरोसिन, केरोसिन से ज्यादा पेट्रोल से कम केरोसिन, लेकिन ज्यादा डीजल कॉज करता है, और पेट्रोल से भी कम पोल्यूशन कॉज करता है सीएनजी और एलपीजी। लेकिन फिर भी हम जो है हाइड्रोजन को यूज नहीं करते, क्यों? बिकॉज हमने क्या बोला कि अच्छे फ्यूल का कैलो इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, यस लो होना चाहिए, बट इतना भी लो नहीं होना चाहिए कि उसका ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल हो जाए, उसको स्टोर करना मुश्किल हो जाए। बिकॉज हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि इट शो स्पॉन्टेनियस कंबशन, रखा रखा अपने आप भी जल सकता है, ये इतना लो होता है। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल होता है। तो फोर्थ क्वालिटी क्या है हमारे गुड फ्यूल की, कि ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इजी एंड फ्यूल शुड बी रेडली अवेलेबल एवरीवेयर। हर जगह मिलना चाहिए फ्यूल। जैसे पेट्रोल हर जगह मिल जाता है, लेकिन सीएनजी के पंप्स पूरी इंडिया में नहीं है। आप देखेंगे, अगर अगर आप सीएनजी दिल्ली में, तो सीएनजी के पंप्स है, आपने दिल्ली में अपने कार में सीएनजी फिल करवाई, और आप मान लीजिए यहाँ से किसी ऐसी जगह चले गए, एक यूपी में कहीं चले गए, वहां पर काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सीएनजी के पंप्स नहीं है। तो वहां जाएंगे, अगर आपकी सीएनजी खत्म हो गई तो आप कैसे लाएंगे अपना कार वापस? तो आपको पेट्रोल फिल कराना पड़ेगा। तो इसलिए एक अच्छा फ्यूल जो है वो सब जगह मिलना चाहिए, और साथ ही साथ चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। So a good fuel should have high calorific value, low ignition temperature, low level of pollution. Transportation should be easily and readily available and should be cheap. ये सारी क्वालिटीज जिसमें होते हैं वो हमारा अच्छा क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन में ये सारी क्वालिटीज हैं, बट एक चीज है उसमें प्रॉब्लम, वो क्या है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही लो होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So our scientists are working on this so that they can increase the ignition temperature of hydrogen a little bit, ताकि रैपिड के बजाय स्पॉन्टेनियस के बजाय उसमें रैपिड कंबशन होने लगे, यानी रखा रखा ना जले, एक स्पार्क की जरूरत तो हो कम से कम, तब हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर पाएंगे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है। और लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद हम इसे सिर्फ इसीलिए यूज नहीं कर पाते बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो, वेरी वेरी लो, कुछ जरूरत से ज्यादा ही लो है, ठीक है। अब as I've told you that whenever there is a process of combustion, whenever we burn anything, तो उसमें स्मोक प्रोड्यूस होता है, और स्मोक में सर्टेन पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से उसमें पार्टिकल्स हो सकते हैं? द फर्स्ट पार्टिकल कैन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमारा जो कंबशन हो रहा है वो ऐसी जगह हो रहा है वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एंड वी ऑल नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मैंने बताया था इन प्रीवियस क्लास, carbon monoxide gas when go inside our body, it absorbs all the oxygen and person feels suffocation and person can even die also, but इससे हम easily बच सकते हैं। सिंपल सी बात है कि whenever we do the process of combustion, whenever we burn anything, we should make sure that there should be adequate supply of oxygen। ठीक है ना, ऑक्सीजन का सप्लाई हम प्रॉपर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी हमारे को। Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. मैम Okay, okay. The second factor is carbon dioxide. If there is adequate supply of oxygen, then also carbon dioxide तो produce होगा ही। अब हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट थोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी एसेंशियल गैस फॉर फोटोसिंथेसिस, बट यस कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाए तो इट कैन आल्सो बिकम अ पॉल्यूटेंट। क्यों? स्टूडेंट्स देखो, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहां पर एक ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर के ऊपर एक और लेयर है विच इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ऐसी कुछ गैसेस होती हैं। क्या काम है इन गैसेस का? कि जब सन हीट अर्थ पर आ रही होती है तो वो उसमें से सन हीट में से ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है, सन हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज लेके जब सन हीट वापस जा रहा होता है अर्थ से, तो जितनी हीट अर्थ को रिक्वायर्ड है उतनी हीट ये गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं अर्थ के लिए। सारी हीट नहीं करती, सारी हीट करेंगी तो हम जल जाएंगे, सन का टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उतनी हीट को ही एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है उस ग्रीन हाउस की। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा
तो वो ज्यादा सन हीट को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अब ग्लोबल वार्मिंग हो भी गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसीज क्या है, कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, जिससे सी लेवल राइज हो जाएगा, हमारे कोस्टल एरियाज जो है जहाँ पर बहुत ज्यादा सी होते हैं वहाँ फ्लड्स आने लगेंगे, और जो बाकी के लो लाइन कोस्टल एरियाज है वहां पर क्या होगा, सब पानी में हमेशा गिरा रहेगा पूरा पोर्शन। अब कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पर ड्रॉट्स आ रहे हैं, जब रेन चाहिए रेन नहीं हो रही है, जब रेन नहीं चाहिए तब रेनफॉल हो रहा है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसीज होती है ग्लोबल वार्मिंग की, और ग्लोबल वार्मिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकिन कम किया जा सकता है बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट, बिकॉज प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाएगा। बिकॉज अब हम कंबशन तो नहीं रोक सकते, जिन चीजों को बर्न करना है वो तो बर्न करना ही पड़ेगा, बट हम प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब द excess carbon dioxide and can prevent us from the global warming. अब थर्ड थिंग जो हमारे स्मोक में होती है, स्पेशली जो हमारे व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है, उसमें दो गैसेस होती हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Sulfur dioxide and nitrogen dioxide, when go into the atmosphere, it join with the water vapors and forms sulfuric acid and nitric acid. ये कौन है, म्यूट करो अपना सिस्टम। Sulfuric acid and nitric acid when come down in the form of rain, रेन वाटर के साथ मिक्स होके जब ये नीचे आता है तो दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अब रेन में अगर एसिड होगा, सोचो एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेचर, वेरी कॉरोसिव दे आर इन नेचर। मैम एसिड अगर ह्यूमन बींग्स पे गिरेगा तो ब्लिस्टर्स कॉज करेगा, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, किसी पर भी अगर गिरेगा तो उसे बर्न कर देगा, जला देगा। उसके अलावा अगर हमारी सॉइल में मिक्स हो जाएगा तो सॉइल में एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर्ली। इवन एसिड रेन जो है हमारे मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल और जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको भी कोरोड कर सकता है। तो हम क्या करें अब इससे बचने के लिए, क्या अपने व्हीकल चलाना बंद कर दें? तो व्हीकल्स में एक हमारी डिवाइस लगती है विच इज कॉल्ड एज कैटालिटिक कन्वर्टर। Catalytic converter can convert the nitrogen dioxide and sulfur dioxide into less harmful gases. ये less harmful gases जो हैं ये एटमॉस्फेयर में जाकर एसिड में कन्वर्ट नहीं होती, और इससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। So these are certain chemicals which produces in the process of combustion and they causes pollution also, but अगर हम चाहें तो इनसे बच सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उसमें भी a lot of processes takes place, a lot of processes of combustion takes place, यानी बहुत सारी चीजों को हमें जलाना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है while manufacturing different things। तो हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से भी जो धुआं निकलता है दैट आल्सो कंटेन मेनी केमिकल्स, लाइक लेड होता है, मर्क्यूरी होते हैं, बहुत पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को भी अपनी जो स्मोक निकलने की जो चिमनी है वहां पे फिल्टर्स लगाने चाहिए, ताकि उनसे निकलने वाला जो स्मोक है वो पोल्यूशन कॉज ना करे। अदरवाइज इतने पॉइजनस केमिकल होते हैं कि वो मेंटल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट इफ वी सी एनी इंडस्ट्री और एनी फैक्ट्री is releasing the smoke directly into the atmosphere, or anybody in your neighbors are having the vehicles and their vehicle produces a large amount of smoke, अपने पता तो चल ही जाता है ना इसमें से बहुत गंदा सा धुआं निकल रहा है। देखो अगर कहीं व्हीकल्स होते हैं जब चलते हैं तो बहुत अजीब सी आवाज करते हैं और बहुत गंदा सा ब्लैक कलर का बिल्कुल उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो हमें उनके अगेंस्ट कंप्लेन करनी चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि कम से कम पोल्यूशन हो और हम अपने एनवायरनमेंट को इस पोल्यूशन से बचा